family members. Wish you all a very good afternoon. I hope that you and all your family members are doing fine. We have gathered here on this occasion to have a webinar by three of our distinguished colleagues. And this is in wake of the pandemic that we are facing and the losses that we have had as a family in the past 1.5 months. We realize that significance of ensuring the uh, medical and financial well-being of ourselves, and more than that, the medical and financial well-being of our dependents, our wives, our children, and if we have our parents with us, we need to ensure that their well-being is taken care for. We all understand as individuals, we carry financial and medical well-being of our dependents. Yet there are several manners, several approaches that are available through government organizations as well as through private institutions that offer different modes of insurances. And in person as well as in a public life, we all understand that there is an increasing significance of insurance for families, for individuals. So, in order to get a better understanding of how CU Raj as a family or CU Raj as a group can get benefited by adapting to insurance system, and more specifically the group insurance system, we have got this wonderful upcoming webinar scheduled for three of our experts will be able to convey some of the important messages, and furthermore they will be able to address your questions and queries towards the later part of this webinar. So with these words, I request and I welcome our distinguished colleagues and guests, Sri Hari Singh Parihar ji, Dr. Hari Singh Parihar ji, Dr. Jiten Kumar ji, and Dr. Sheetal Prasad Mahendra ji. Welcome, sir, and over to you for this webinar. Over to you, Jiten sir. Please unmute yourself, sir. Okay, today's basically discussions, we have, as there are three members, so as it has three very important part that why it is required, now these days, and what are the conceptual parts or practicalities with the group insurance and how that may be exercised. So it's today's webinar has three parts. So first, Professor S.P. Mahan sir, so he'll continue, and then after him I will join. Mahan sir. बहुत बहुत धन्यवाद. सभी को आवाज आ रही है? आ रही है. सभी को नमस्कार. परम आदरणीय श्रीमान वीसी साहब, सभी डीन साहिबान, सभी विभागाध्यक्ष साहिबान और हमारी टीम को जो साथ साथ मोटिवेट करके लेकर चल रहे हैं, प्रोफेसर जादव जी और सभी विद्वान साथियों. आज जो हम बात कर रहे हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है, एक पुरानी कहावत है कि जब आग लगे तो कुआं खोदते हैं. समझदार लोग पहले कुआं खोदे हुए होते हैं तो उस पानी को आग बुझाने में काम ले लेते हैं. आज जिस वेबिनार की हम बात कर रहे हैं या इसकी आवश्यकता को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने ये कुआं खोदने का प्रयास जब किया है, जब हमारे यहाँ कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नुकसान हो गया, थोड़ी बहुत क्षति हो गई, आग लग गई, तब हमने कुआं खोदने का प्रयास किया है. पर फिर भी बुद्धिमानी इसमें है कि कम से कम इस कुएं के पानी से आगे की पीढ़ी तो सलामत रहेगी, आगे की पीढ़ी तो हरी भरी रहे, तभी तो कुआं खोदे. मित्रों, जिंदगी में हमेशा हम जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, ये अलग बात है. ईश्वर हमें हर हाल में, हर
चीज की पूर्ति करने का प्रयास करता है, लेकिन ईश्वर भी कहता है कि कर्म तो अपन को खुद को ही करना पड़ेगा। यदि हम कर्म नहीं करेंगे, यदि हम में अपने आप को और अपने परिवार को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को सुरक्षित नहीं रखने की बात आएगी, तो किस तरह हम हमारे राष्ट्र ऋण को, हमारे गुरु ऋण को, हमारे पितृ ऋण को चुका पाएंगे। और अपनी पीढ़ी के साथ साथ आगामी पीढ़ी की सुरक्षा करना भी हमारा पितृ ऋण है, जो हमको चुकाना ही चाहिए। पितृ ऋण का तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं हो जाता है कि हमने वंश वृद्धि कर दी। वंश वृद्धि के साथ साथ हमें उस पीढ़ी पर भी बात करनी चाहिए, उस पीढ़ी की सुरक्षा को भी लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वंश वृद्धि की बात करेंगे, तो फिर बात बेमानी रह जाएगी। इसलिए हमें लगातार हमारे सबके वेलफेयर का प्रयास करना चाहिए। इसी में बीमा क्या है वास्तव में? बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने का प्रभावी हथियार है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, और इसलिए हम बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य के संभावित नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। भविष्य के संभावित नुकसान की, क्योंकि जब आज हम इस समय रह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के समय रह रहे हैं, जो आज का ही नहीं हजारों लाखों साल में आगे क्या हो सकता है उसकी गणना करने पे लगा हुआ है लगातार। और विज्ञान हमारे सामने लगातार ये सब लाने के लगा हुआ है कि इतने समय बाद सूर्य नहीं रहेगा, इतने समय बाद धरती नहीं रहेगी या रहेगी, या क्या परिवर्तन हो जाएंगे। तो हमें तो कम से कम 1-2 पीढ़ी का तो सोचना ही चाहिए। हम इतने आगे जाने की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन 1-2 पीढ़ी का जरूर हमें सोचना चाहिए। सामूहिक बीमा में सामूहिक का मतलब है कि मित्रों का सामूहिक संगठन। कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी चलते हैं, एकला चलो रे, लेकिन एकला चलो में थक जाता है आदमी। कारवां साथ होती है तो कारवां की वजह से हिम्मत बढ़ती जाती है, और एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना के भाव से जब आदमी आगे बढ़ता है, जो ज्यादा मजबूत है वो कमजोर को हाथ देता है और आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसमें ताकत आ जाती है। मिर्जा गालिब की कुछ लाइनों से मैं अगर अपनी बात को मजबूती दूं, आप मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे। ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। ये अलग बात है मित्रों, कुछ दोस्तों को हमने खोने के बाद हम फिर उन्हीं बाकी दोस्तों के लिए और उन दोस्तों के साथ साथ उन परिवारों के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उन सब की सलामती, उन सब की सलामती, उनके आशीर्वाद मेरे लिए जरूरी है और मेरे आशीर्वाद उनके लिए जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बंद मुट्ठी क्यों आए थे और खुले मुट्ठी क्यों चले जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जब हम आए थे बंद मुट्ठी के साथ साथ तो हमारे को बहुत सारी दुआएं बख्शी थी, हम बहुत सारी दुआएं लेकर के आए थे। और जब खाली हाथ जाते हैं मित्रों तो सारी दुआओं की नेमत लुटा के जाते हैं। जानवर और इंसान में यही फर्क होता है, जानवर एक बार की हो सकता है खुद के लिए जीता हो, लेकिन इंसान अपनों के लिए जीता है, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए जीता है। इसीलिए तो समाज बनता है, इसीलिए तो सामाजिकरण होता है। और जब ये सब चीजें साथ चलती हैं तो ऐसी स्थिति में हमें एकजुट होकर के लगातार काम करना चाहिए। कुछ प्रीमियम की बात मैं आगे करूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये मानते हैं हम कि जीवन में सिर्फ बीमा जो धन जमा करके आगे धन प्राप्त किया जाने का जरिया है, उसके अलावा भी जीवन में हमें तन और मन की प्रसन्नता का प्रीमियम भी जमा करना चाहिए, स्वास्थ्य का प्रीमियम भी जमा करना चाहिए, रिश्तों का प्रीमियम भी जमा करना चाहिए मित्रों, और अपने अड़ोस पड़ोस को प्रसन्न रखने का भी प्रीमियम जमा करना चाहिए। क्योंकि ये बाद में पता चलता है कि जब मैं चला गया तो मेरे बच्चों के पास कितने लोग थे जिन्होंने ये कहा आकर के कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर एक भी नहीं तो मान लीजिए हमने कोई प्रीमियम जमा नहीं किया, न अड़ोस पड़ोस का, न रिश्ते का। हमने किसके लिए काम किया? किसी के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमें हर हाल में हर तरीके का प्रीमियम अता करना चाहिए, हर तरह का प्रीमियम जमा करना चाहिए। ये हम ही नहीं,
हर वह मनुष्य जो भी थोड़ा सा विवेक रखता है, जो आगे पीछे का सोचता है, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर का हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, सब अपने अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि वेलफेयर स्टेट का काम है, गवर्नमेंट करेगी, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि गवर्नमेंट करे। नहीं, सभी लोग अपने अपने अंशदान से, कुछ तथ्य हमने जुटाए हैं जिससे हम ये बताएंगे कि अपने अपने अंशदान से लोगों ने सामूहिक बीमा, दुर्घटना बीमा, मेडिक्लेम और एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड का संचालन लगातार कर रहे हैं। ये उनकी अपनी उम्दा सोच है। सरकार उसे खाली मैनेज कर रही है, सरकार उसे सिर्फ व्यवस्थित कर रही है, बाकी वो खुद की जिज्ञासा थी उनकी, जो इस तरीके से अपने और सबके वेलफेयर के लिए काम आया, और वही आगे बढ़ करके आगे इस तरीके से आता है कि जो जीवन में हर हाल में हर व्यक्ति को हमारे बाद भी खुश करने की कोशिश करे। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम अति अति आत्मविश्वास में कुछ चीजें भूल जाते हैं या कुछ चीजों को गौर ही नहीं करना चाहते। कभी कुछ लोग कह देते हैं कि जो कुछ है ईश्वर के हाथ में, फिर की चिंता करनी। अरे ईश्वर के हाथ में बिल्कुल सही है, पर ईश्वर ने कर्म करने के लिए तो हमें कह रखा है, उसके अनुसार तो हमें काम करना ही करना है। और प्रगाढ़ आस्था और प्रगाढ़ विश्वास वो भी तो हमें नहीं है, तो वो भी करेगा, लेकिन उसके लिए जो चाहिए, हमारा जितना डिवोशन उसके प्रति चाहिए वो नहीं है। कभी कभी हम मुगालते में रह जाते हैं। हम तो गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत कैलकुलेटिव हैं कि मेरा इसी में फायदा हो सकता है, पड़ोस का इसमें नहीं होना चाहिए या उसका नहीं होना चाहिए। मित्रों, मैं मानता हूं आप में से बहुत से लोगों का इंश्योरेंस हो सकता है, मैं मानता हूं बहुत से लोगों ने अपने जीवन को सुरक्षित कर रखा होगा, लेकिन गांधी जी का एक जंतर जो कभी स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा होगा कि कभी भी कुछ मन में संशय आए तो अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच लेना, सारा संशय समाप्त हो जाएगा। और बिल्कुल सच्चाई है, यदि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत से लोगों ने अपने जीवन का पूरा व्यवस्थित कर रखा है, पूरा सुरक्षित कर रखा है, लेकिन यदि उसमें अंतिम पंक्ति में कोई अंतिम व्यक्ति भी कमजोर है और उसने भूल से या किसी वजह से भी नहीं करा, तो निश्चित रूप से हमारी कड़ी कमजोर है और हमारे परिवार की कहीं न कहीं कमजोर कड़ी टूट सकती है। इसलिए हमें कुछ व्यक्तिगत हित को छोड़ करके सामूहिक हित के लिए भी सोचना चाहिए, और सामूहिक हित में हेलो इस जितेंद्र सर, ऐसा लगता है कि एसपी सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं मीनवाइल। तो बेटा एक बार कॉल करके पूछ लिया जाए सबको। नहीं, हाँ हाँ, वो डिस्कनेक्टेड दिखा रहे हैं सर। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया। तो मे बी जस्ट वेट फॉर 30 seconds मे बी। ओके, हेलो
हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ सुन रहे हैं। सुन पा रहे हैं? यस यस जी सर जी। तो मैं बात कर रहा था, हमें कभी भी इस अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए कि हम सिर्फ हमारे लाभ हानि ही सोचें, हम पूरे परिवार की लाभ हानि के बारे में सोचे। यदि हमारा कोई प्रीमियम देने से हमें इतना लाभ नहीं होता जिसे दूसरे के प्रीमियम से फायदा हो, क्योंकि सामूहिक बीमे का फायदा ही यही है, क्योंकि उसमें जो बहुत नीचे के स्तर पर भी है उसको भी बहुत अधिक फायदा मिल जाता है बड़ों के साथ साथ, या बड़ों का प्रीमियम है वो कम हो जाता है दूसरों के साथ साथ। इस तरह का बहुत अच्छा फायदा है, और हमें सदैव अपनी अजर अमरता के बारे में कतई हम सब जानते हैं बिल्कुल नहीं है, यह सत्य है, क्योंकि हम बिल्कुल नर के स्तर पर हैं राम की तरह, क्योंकि राम भी नारायण से नर के स्तर पर आकर ही रावण को जीतते हैं। उसी प्रकार हम भी नर के स्तर पर आकर के इन समस्याओं को जीत सकते हैं, अन्यथा इन समस्याओं से हम नहीं जीत सकते। बहुत स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में देखने पर पता चलता है कि बहुत कम प्रीमियम पर बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत ऐसे ऐसे उनके प्लान हैं जो सबके लिए अनुकूल हो सकते हैं, सबके लिए स्लैब के अकॉर्डिंग अनुकूल हो सकते हैं। ऐसा हमें भी सोचना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के रूप में दूं कि राजस्थान सरकार में, मैं राजस्थान सरकार से आया हूं इसलिए मुझे पता है, और वहां पर अधिकतम प्रीमियम राशि 7,000 रुपए मासिक है जो आदमी अपनी तनख्वाह से कटवाता है। और मैं लगातार अभी भी उस पॉलिसी को जारी करे हुए हूं और अपनी कटौती भरता हूं। उसमें 800 रुपए, अगर 22,000 रुपए बेसिक है तो 800 रुपए, और 22,000 1 से 28,000 तक का बेसिक है तो सिर्फ 1,200 रुपए मासिक प्रीमियम देता है। और उसी प्रकार 2,200, 3,000 और 72,000 रुपए से ऊपर प्रीमियम बेसिक है तो 5,000 का प्रीमियम वह चुकाता है, और उसमें उनका इंश्योरेंस 40 लाख से 50 लाख रुपए सम इंश्योर तक आता है। ऐसा का ऐसा ही अगर हम आगे देखते हैं तो केंद्र सरकार भी इसी तरीके की प्लान के साथ साथ एम्प्लॉयर के फंड को मैनेज करती है। केंद्र सरकार में जहां कोई जमाने में जो पे लेवल 10 से ऊपर था उसमें 120 रुपए पे 1,20,000 रुपए का सम एश्योर्ड था, वो आज की तारीख में 5,000 रुपए उनका मंथली कटता है और उसमें 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है मित्रों। जहां पहले 60 रुपए पे 60,000 था, आज की तारीख में लेवल 6 से 9 में 2,500 रुपए पर 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, और इसी प्रकार 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। तो ये सरकार की योजनाएं हैं जिसमें खुद कर्मचारी की सहभागिता से हो रहा है, कहीं पर भी सरकार इस प्रीमियम को नहीं चुका रही है। इसी प्रकार बहुत सारे विश्वविद्यालयों से भी हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। जो विश्वविद्यालय 2004 से पूर्व के हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जामिया और इग्नू से मेरी वहां बात हुई, जिसमें 2004 से पूर्व के होने की वजह से जो बाद में एम्प्लॉय लगे कहीं से छोड़ करके आए हैं उनको पुरानी पेंशन और सामूहिक जीवन बीमा के विकल्प दिए गए, और जो 2009 के बाद में वहां पर लगे उन्हें नए नियम के आधार पर NPS और जीवन बीमा के कुछ यूनिवर्सिटियों ने अपने स्तर पर GIC और LIC से व्यवस्था करके उन लोगों को पॉलिसी जारी की जिससे उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने उनके बारे में नहीं सोचा, और ये सब स्वयं के द्वारा प्रीमियम देकर के सुविधा प्राप्त की जा रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है और कुछ यूनिवर्सिटीज में MOU साइन हो गए, ऐसी स्थिति में है, पर सभी यूनिवर्सिटीज और पुराने संस्थान इस बारे में अनवरत सोच रहे हैं, जिस बारे में आज हम सोच रहे हैं। क्योंकि मित्रों, जिंदगी में दुर्घटना कभी भी हो सकती है, मगर दुर्घटना के बाद बीमा नहीं हो सकता है। जिंदगी में दुर्घटना कभी भी हो सकती है, मगर दुर्घटना के बाद बीमा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हर हाल में
कुछ न कुछ सोचना चाहिए। यही बात नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज में बहुत आगे है, जिन्होंने एम्प्लॉय वेलफेयर फंड बना रखे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो वेलफेयर फंड में इस समय लगभग 14 करोड़ रुपए हैं, और जिसके द्वारा इस समय कोरोना संकट में प्रभावितों की सहायता की जा रही है। अपुष्ट आंकड़ों से ये उसके संबंधित कॉलेजेस और बाकी सब लोगों से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डेटा है उसमें 100-150 हमारे साथी लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे। उन लोगों की, इवन वहां पर संविदा पर जो लगे हुए हैं, उनकी भी इस वेलफेयर फंड की सहायता से मदद की जा रही है। क्यों? ये सब चीजें हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट पर हो चाहे परमानेंट हो। दुख तो सबका एक जैसा है, और जब दुख सबका एक जैसा है तो समाधान करने की कोशिश भी हमें ऐसी ही करनी चाहिए। राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास भी लगभग 4-5 करोड़ रुपए हैं, और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी मासिक रूप से 1000 रुपए का अंशदान देता है वहां पर, और जिससे वहां जिस प्रकार की भी समस्या हो, किसी को लॉनिंग की या किसी को अन्य क्षेत्र में पैसे की आवश्यकता हो, तो उसकी पूर्ति उसके माध्यम से की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे वेलफेयर के काम हैं, जिन वेलफेयर के कामों को ये यूनिवर्सिटीज कर रही है। और आपको पता होगा कि सेना में तो इस तरह के फंड का प्रावधान शुरू से ही है, जहां हितकारिणी और दूसरे तरीके के सैनिक कल्याण बोर्ड लगातार काम करते रहते हैं। एक बात और, हमारे यहाँ CGHS है, इसके अलावा भी ये चीज मुझे इलाहाबाद और यहाँ पता चला कि वहां पर मेडिकल की सुविधा के लिए भी 1000 रुपए या उससे कम की कटौती कई जगह करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट और कोई स्टेट गवर्नमेंट भी RPMF के नाम से फंड को काटती है, जो उनको बाद में मेडिकल के रूप में दिया जा सकता है। तो अगर हम लोग सोचें, क्योंकि हम सब कर सकते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और कुआं हम अब खोदना शुरू कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीद रखें, इस बात की आशा रखें कि पानी उसमें होगा, और हमारे प्रयासों से लबालब होगा पानी भी उसके अंदर। क्योंकि यदि अपन अब से भी करना शुरू करते हैं, और विश्वविद्यालय में ज्यादा भी नहीं तो 150 रुपए मासिक हम काटना शुरू करते हैं हमारी फैकल्टी से, सब लोगों से, तो लगभग 250 आदमी जो टीचिंग नॉन टीचिंग है, उनका एक वर्ष का 4,50,000 रुपए के आसपास की राशि जुट जाएगी। और अगर ये इसी अनुपात में जुड़ता रहा तो निश्चित रूप से हमारे पास कहीं पर भी किसी की मदद करने के लिए हाथ पीछे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देनदार कोई और है, देते रहे दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करे जाते नीचे नैन। रहीमदास जी बहुत पहले कह गए, हमारे पास कुछ होगा तो हम निश्चित रूप से सब लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा हमेशा देंगे। इसके अलावा भी जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी कुछ प्रीमियम जमा कर देने चाहिए। कुछ प्रीमियम के जो, क्योंकि आध्यात्मिक प्रीमियम है, कुछ सामाजिक प्रीमियम है, तो कुछ नगद के प्रीमियम है। मित्रों, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भी एक तरीके का प्रीमियम है कि हम हमारे प्रत्येक निवेश, इवन जमीन के या SIP के या इंश्योरेंस के सब कागजों को एक फाइल में करके रखें, हमारे आदेशों को एक फाइल में करके रखें। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि परिवार, हमारे जाने के बाद परिवार को ये पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या लाभ परिवार को मिलना चाहिए था, ये उसे पता ही नहीं चल पाता है, और बहुत सारा पैसा इधर से उधर जाता है। और जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी काया, इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जब शरीर मजबूत होगा। इसलिए 1 घंटा रोज अपने शरीर के लिए जरूर दीजिए, ताकि हम हर हाल में स्वस्थ रह सकें। क्योंकि मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि हमारे गाढ़े समय के लिए कुछ बचत अवश्य करनी चाहिए, कुछ पुण्य के लिए, परलोक के लिए करना चाहिए, कुछ यहाँ के लिए करना चाहिए, ताकि सदैव मैं ये कह सकूं कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं,
कुछ करूं ऐसा कि बाद भी मेरे अपने मुस्कुराते रहें। तो मित्रों, आप सभी से दरखास्त है, हम सब मिलकर के कुछ ऐसा रास्ता बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं जो आगे के लोगों को नजीर के रूप में पेश की जा सके। और इसके बाद में ये कैसे संभव होगा, किस किस तरह से कैलकुलेशन हो पाएगी, इसके लिए मित्र जितेंद्र जी को आगे की कार्रवाई के लिए निवेदन करता हूं। प्रोफेसर जितेंद्र जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर ने बहुत सारी ज़रूरतें और जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं आसपास उनके बारे में रोशनी डाली। मैं अपनी बातों में 3 बातें हैं बेसिकली कि आज हमें पैसे की ज़रूरत क्यों है, पहली बात मैं उस पर अपनी बात रखूँगा। फिर वो कैसे हम अपनी शिवराज फैमिली के लिए कर सकते हैं और वो कैसे इंश्योरेंस के माध्यम से आ सकती है, मैं इन तीनों बातों के लिए बात करूँगा। हमारे सोशल साइंस वाले, साहित्य वाले सारे मित्र लोग हैं, वो जो मैं कह रहा हूँ इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि जब इंसान आया तो इंसान के साथ में पहले ताकत महत्वपूर्ण थी, और जब ताकत महत्वपूर्ण हो गई और जब वो ताकत कबीला प्रथा जिसको कहते थे, और जब वो ताकत कमज़ोर पड़ने लगी तो उसने कहीं ना कहीं अपने लिए संप्रभुता और अपने लिए समर्पण बना लिया लोगों के बीच में, और जब वो बना तो एक राजा बन के बैठ गया। राजतंत्र चलता रहा और उसके बाद में फिर राजतंत्र में जब बात की महत्ता आ गई, व्यक्ति की महत्ता आ गई, विचारों की महत्ता आ गई, तो कहीं ना कहीं से हम एक सभ्य समाज का पार्ट बन गए, जिसमें डेमोक्रेसी भी आ गई, या जो आज वर्तमान में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी आ गई। तो विभिन्न प्रकार की जो भी डेवलपमेंट इशूज़ पे हमने बात करना चाहा। आज मुझे बहुत पुरानी लाइनें याद आ रही हैं। मैं महेंद्र सर की बात को सब्स्टिट्यूट करूँगा कि लाग लगने के बाद में कुआं नहीं खोदते हैं, तो उसमें मैं ये कहता हूं कि दुर्दिनों के दर्द में फर्ज की फरियाद क्यों, दुर्दिनों के दर्द में फर्ज की फरियाद क्यों, मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो सत्य से फरियाद क्यों। अगर हमारा बुरा दिन आ रहा है तो हम उस बुरे दिन के साथ में प्रेम की भाषा में नहीं आ सकते, या हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि बुरे दिन चले जाएंगे और हम बैठे रहेंगे, चाहे वो कर्म थियरी की बात करें। और ये सच है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो सत्य से साक्षात्कार क्यों, मतलब जो अंतिम सत्य है तो हम उसके साथ ही क्यों, अभी से क्यों जाएं। तो कहीं ना कहीं से हमें शिवराज फैमिली को एज ए फैमिली, एज कलीग, एज ह्यूमन बीइंग, जिस भी फॉर्म पे हम आते हैं, तो हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कहीं ना कहीं से बात आ जाती कि पहले होता क्या था कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। मेरे पास गेहूं है, किसी के पास दाल है, मैंने अपना गेहूं दे दिया, उसने मुझे दाल दे दी। अगर मैं जो काम करता हूं वो काम मैंने किया, दूसरे ने दे दिया, तो बदलता चला गया। लेकिन अब क्या है, अब यह है कि आपको कुछ भी करना है तो आपके लिए उसके लिए पैसा चाहिए, और उसी पैसे की परिपाटी में ही कहीं ना कहीं से हम एम्प्लॉय बने या हम कहीं काम करते हैं, उसके बीच में हमें सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 लोग हैं, एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है। मीन आई डू वर्क एंड इन माई वर्क एम्प्लॉयर मी पे समथिंग, दैट मीन आई डू गेट सम इनकम। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, क्या हमारे पास केवल काम का ही संबंध है कि जो हमसे एम्प्लॉयर काम करा रहा है वो हम करेंगे, उसके बदले में हमें सैलरी मिल जाएगी। लेकिन इस इनकम में कहीं ना कहीं से जो एम्प्लॉय की लायबिलिटीज आती हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं या उसकी जो जरूरतें होती हैं, वो कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयर का पार्ट आ जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज हैव द फंड, चाहे वो रिटायरमेंट प्लान की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, या किसी और प्लान की बात करें, जो भी अलाउंसेज हैं हमारे उस पार्ट पे आ जाते हैं। बट इसी के साथ में हमारी आती हैं लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द इनकम। एवरी इंडिविजुअल और every institution has their own liabilities and responsibilities. So when I was exploring about the liabilities and responsibilities which are together with as a individual, as an institution, and as collectively as a society, there are so many times where society needs to make the responsibility. अभी जब कोरोना पैंडेमिक में जब हेल्थ के सारी प्रॉब्लम्स थी या सिस्टम में कहीं ना कहीं से अगर देयर वाज द वैक्यूम, सो पीपल हैज कम टुगेदर एंड देन दे हैव फाइंड द सॉल्यूशंस। वो कुछ लोग ट्विटर से है, तो कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, कुछ लोग कहीं से करके, लाइक आवर ओन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद alumni group has a list of the hospitals, then medical practitioners,
दवाएं कहाँ मिल रही, वो सारी लिस्ट थी और जिसको जरूरत थी उसको प्रोवाइड करा रहे थे। तो देयर आर टू थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज। सो डेफिनेटली हम हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज को अपने तरीके से लेता है। वो कहाँ एंजॉय करना चाहता है उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, या जिस फॉर्म पे करना चाहता है उस फॉर्म पे करना चाहता है। और हर चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं से पैसे की ज़रूरत होती है, और इसीलिए हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो द स्टेट ऑफ फैक्ट ऑफ हैविंग ड्यूटी टू डील विद समथिंग और हैविंग कंट्रोल ओवर समवन, the state of fact or being accountable or blame for something, and the opportunity or ability to act independently and take decisions without authorization. That is what, this is the core part of responsibility, where by heart we feel that this is my duty, this is my responsibility to avert, I have to do it. So what is the liability? Liability is what, the state of being legally responsible for something. A thing for is someone is responsible, especially an amount of money, and then a person or things whose presence or behavior is likely to put one at a disadvantage. So from my side, I do feel that liability and responsibility में केवल एक ही अंतर है, प्रेम का। अगर आपको व्यक्ति से प्रेम है तो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको व्यक्ति से प्रेम नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको ड्यूटी से प्रेम है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको ड्यूटी से प्रेम नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको किसी एक्ट के लिए आप फील करते हैं कि यस आई हैव टू एंजॉय, दिस विल सेव मी, दिस विल सेव माय फैमिली, दिस विल सेव माय नेबर्स, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एज एंड व्हेन यू विल फील दैट कि व्हाट्स माय व्हाई शुड आई बॉदर, अगर किसी को रात को 12 बजे कोई जरूरत होती तो मैं क्यों जाऊं, एंड देन दैट विल बिकम योर लायबिलिटी, एंड देन यू हैव टू फील दैट कि भाई मेरा पड़ोसी क्या कहेगा इसलिए मुझे जाना चाहिए। कल के लिए कोई ये ना कहे कि देखिए हमने तो डॉक्टर साहब को जगाते रह गए, रात को फोन किया लेकिन यहाँ पर सब कुछ हो गया, कोई नहीं आया, देन दैट विल बिकम द लायबिलिटी। सो फॉर मी ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी हैज ओनली वन मीनिंग, दैट अगर प्रेम है तो हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज वो लायबिलिटी बन जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, we talk it in financial terms, so we always have debits, loans, savings and insurance. So that means what, we do have the present financial liabilities, we have so many loans, we may also have the future financial liabilities. what, अगर बच्चे को हमें अच्छे से पढ़ाना तो उसकी फीस कहाँ से आएगी, अगर फैमिली में हमारे जो लोग हैं वो इन फ्यूचर बीमार पड़ते हैं तो उसका पैसा कहाँ से आएगा। There may be the so many things, likewise what we may feel it that लेट सपोज वन हैज लेफ्ट इट, पति पत्नी में से कोई एक छोड़ के चला जाता है, उसको सुरक्षा की जरूरत है तो वो आपके घर में नहीं रह सकते हैं। दे में नीड दी ओल्ड एज होम, दे में नीड दी फ्लैट वेयर द सिक्योरिटी इज मोर, और उसके लिए जो पैसे की जरूरत होगी वो कौन देगा। इफ समवन इज नॉट देयर ऑन दैट टाइम हु कैन टेक केयर वन थिंग, और समवन इज नॉट एबल टू टेक केयर, दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। एक के लिए तो क्या है कि हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, वो बहुत मजबूत हैं, फाइनेंशियली मजबूत हैं, सोशली मजबूत हैं और वो टेक केयर कर सकते हैं, नो इशू, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सिचुएशन में नहीं है या कुछ ऐसा होता है जिससे वो नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो उस केस में जो हमारी फ्यूचर लायबिलिटी बनेगी। और आज के समय में क्योंकि कोई आइटम एक्सचेंज नहीं है, विद दैट प्रेजेंट टाइम वी डोंट हैव एनीथिंग विद द आइटम एक्सचेंज, वी हैव टू बाई ईच एंड एवरीथिंग, या हम जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। तो दैट ट्रांसफर विद द फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो अगर हम अपनी इनकम की बात करें तो जो मुझे लगता है कि एक फ्लो बनता है, वो फ्लो कैसे बनता है कि जो हमारी इनकम है एक्सपेंसेस अगेंस्ट द डेली नीड्स, हमारी रोज की जरूरतें हैं, खाना है, हमारे पेट्रोल का पैसा है, हमारे जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, अगर हम क्लब ज्वाइन करते हैं क्लब की फीस है, जिम ज्वाइन करते हैं जिम की फीस है, बैडमिंटन खेलते हैं शटल की फीस है। सो देन हेल्थ ऑफ द डिपेंडेंट मेंबर्स, डेफिनेटली कोई बीमार होता है उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, मैरिज एंड अदर फैमिली फंक्शंस, बच्चे की शादी करना है या किसी फैमिली मेंबर्स में किसी की शादी करना है, कोई फैमिली फंक्शंस है जिसको आपको जाना है, उसको उसके साथ में जो भी हमारी गिफ्ट्स हैं या जिस भी फॉर्म पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। देन सोशल लायबिलिटीज, डेफिनेटली वी डू हैव द सोशल लायबिलिटीज, मीन व्हाट, हमारी बस्ती में कहें या आसपास कहें कोई ना कोई फंक्शन होता है जिसमें हम लोग सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और जब उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं से उसमें हमारे पास एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बनता है, और वो किस फॉर्म पे बनेगा, डेफिनेटली इट इज एक्सपेक्टेड एज पर योर इनकम।
आपके ओहदे और आपके पद और आपकी सैलरी के हिसाब से हर व्यक्ति आपसे उम्मीद करता है आप कैसे पे। देन लोन अगेंस्ट मूवेबल एंड नॉन मूवेबल एसेट्स एंड लोन ऑफ देयर डिपेंडेंट्स। मैं दोनों को अलग अलग बात करता हूं कि आपने एक तो आपके ऊपर कोई ना कोई लोन हो सकता है, या आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई लोन हो सकता है। तो आप अपनी इनकम से ही इनको मीट आउट करते हैं। जो मेरा अनुभव है और जो सोशल एक्टिविटीज़ में मैं लोगों से बात करता हूँ या अनुभव करता हूँ, तो समाज में दो तरह के व्यक्ति लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके पास असेट्स और पैसा ऐसा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, और दूसरे लोग वो लोग होते हैं जो जन्म लेते हैं और उनके पास जो भी होता है या तो परिवार को बनाने में लगा देते हैं या फिर कुछ कर। आप सबको बागवान मूवी ध्यान होगी। तो बागवान में क्या था कि अमिताभ बच्चन ने जो भी एज ए कैरेक्टर उन्होंने अपने बच्चों को बनाने के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया। तो अगर इसमें मैं बात करता हूं तो एक्सपेंसेस अगेंस्ट डेली एक्सपेंसेस, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज, अदर फैमिली फंक्शंस, हेल्थ डिपेंडेंट मेंबर्स, तो ये सारी कैटेगरीज हैं। तो मेरा ऐसा मानना है या जो मैंने अपने अनुभव से लिया है कि अपनी जिंदगी कमाई का लगभग 20% हम अपने रोजमर्रा के खर्चे में भी लगाते हैं। हम लगभग 10% अपनी जीवन की कमाई का अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाते हैं। हम जिंदगी की कमाई का लगभग 10% जो है हम कहीं ना कहीं से फैमिली में जो मैरिज है या फैमिली फंक्शंस है उनके लिए लगाते हैं। जिंदगी की कमाई कहीं ना कहीं हम 5% जो है वो आपका हेल्थ डिपेंडेंट में कमाते हैं, 5% ही हम सोशल लायबिलिटीज में देते हैं, और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है वो मूवेबल एसेट्स पर है। मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदना है या कुछ और खरीदना है हमारे पास में, तो उसमें सबसे ज़्यादा हम अपनी जिंदगी कमाई का लगभग 30% खर्च करते हैं। और इसी तरीके से लायबिलिटीज ऑफ देयर डिपेंडेंट मेंबर्स, बच्चे कहाँ से कोई लायबिलिटी आती है या आपके स्पाउस से कहाँ से आती है, या फादर के नाम से या मदर के नाम से या आपके भाई के नाम से किसी फॉर्म पे जो आपकी लायबिलिटी आती है वो लगभग 10% होती है। और 10% को मैं रखता हूँ वो 10% आपका कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। डेफिनेटली इन आवर लाइफ साइकिल वी डू हैव डिफरेंट टाइम्स where we enjoy more parties, so definitely we make more expenses in the functions. Sometimes we have to acquire the our assets, like घर बनवाते हैं तो हमें उस समय पे तो मैक्सिमम हमारी इनकम घर बनवाने में चली जाती है। We buy the car, we may give the maximum expenses with the assets. So and then liabilities of their dependents. तो जब आप बच्चे बड़े हो रहे हैं या कुछ हो रहा है उसकी स्थिति में आपके पास में लायबिलिटीज आती हैं। So this is just my own experience with the discussion my friends. तो इस परसेंटेज को लेकर के मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, बट whatever I do have experience, whatever I do make the financial planning accordingly, I make this kind of percentage. So if we come out with the social welfare in Sivraj, so here is the Sivraj means as a whole family. All employees, there are two participants, as we all employee are the Sivraj, and there is the Sivraj administration, that how the welfare may have to govern of the Sivraj family, and definitely that be taken care by the administration. यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोगों में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, जानते भी होंगे कि हमारी हिंदू धर्म पद्धति में 3 पिता कहे जाते हैं। एक वो परम पिता परमेश्वर जो सबका पिता जिसको कहते हैं, एक वो पिता जो हमें जन्म देता है, और एक वो पिता जो आपको पालता है। और पिता को यहाँ पर आप एक सिंबल पे लीजिएगा। पिता का मैं उस फैमिली एंटिटी पे बात नहीं करना चाहता हूँ, व्यक्ति पे नहीं बात करना चाहता हूँ, बट पिता मीन एक दैट इज द रिस्पॉन्सिबल यूनिट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं से हम भगवान को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, या हमारा एम्प्लॉयर आ जाता है, या फिर हमारा हेड ऑफ द फैमिली आ जाता है। तो उस केस में ये दोनों की ज्वाइंट लायबिलिटी हो जाती है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके जो लोग हैं या उसके जो डिपेंडेंट हैं या उसके जो चाहने वाले लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो उस पर आते हैं। तो डेफिनेटली प्रोफेसर महंत सर ने बहुत अच्छे से एवलोरेट किया है कि कहीं ना कहीं उसमें हमें शिवराज वेलफेयर फंड की जरूरत होगी, और उसमें डेफिनेटली हम इंडिविजुअल होंगे, और देयर बी ए वन सेक्शन who has to take care of that fund, and definitely that has to be defined as per the defined law or government procedures, as well as the procedure under the Sivraj condition university administration conditions. So definitely everyone has to contribute,
in on account, and definitely why I am using both way arrow की दोनों ही हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और जब हमें प्रॉब्लम आएगी तो उसी फंड से हमें कोई ना कोई उसी फंड से हमें ही सहायता मिलेगी. So here individual has to contribute to this Shivraj, and definitely that may be used somewhere, that may be invested somewhere, that may be has to be secured somewhere where we have to get the maximum earning. So I'm using a one symbolic building that where the all money be contributed by individuals, that be with the Shivraj, and that be invested somewhere, or that be saved somewhere, it be put somewhere where we may get the that fund will get the income. So what I want to propose, this is the 3 steps here that all our group members may agree. That means who, देखिए ये जो भी हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या जो हम डिस्कशंस में बात कर रहे हैं, हमारे जो भी 6 लोग 7 लोग मेंबर्स में हैं, so definitely we are requesting all that all has to come in a group, and then we have to work together for the time where we are not there and family may be in trouble. I'm using may be in trouble. हम उस दिन के लिए तैयार होना चाहते हैं जिस दिन हमारी फैमिली को कोई दिक्कत हो सकती है, किसी भी एम्प्लॉय की फैमिली को दिक्कत हो सकती है, तो उस दिन के लिए हम तैयार होना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे उसमें हम मदद कर सकें, उसमें हमें जरूरत ना पड़े. डेफिनेटली अभी हमारी जो एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जो माधव जी वाला एग्जाम्पल हुआ है कि सारी फैमिली मेंबर्स एक आए और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और फिर किया. तो इसकी मैं एक ही बात की कमी बोलूंगा कि जो अगर हम आज हमारे पास ऐसा कोई फंड होता तो हमें उसके लिए शायद 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे की जरूरत होती, और हम उस जो हमने 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 2 दिन बाद काम किया है वो शायद हम अगले घंटे में कर सकते थे. तो इफ यू हैव एनी सच काइंड ऑफ ए मैकेनिज्म, so any family members are in trouble from in Shivraj family, so we may immediately provide them the help. So first step be there that all our group member may agree कि हमें इस टाइप की किसी फंड की बात करना है. Then step 2 is that administrative approval and formulation of fund management. Definitely, because we all together employee of the Shivraj want to come in this group. So definitely the Shivraj administration, whatever the procedure, I may use that word. So there be the administrative procedure that the fund has to be recognized and third fund has to be well managed as per the formulated management. हम उसको कैसे मैनेज करेंगे कैसे नहीं मैनेज करेंगे उसकी बात करेंगे. And then third thing is more important, that use of the fund and mechanism of identifying the beneficiary. So whatever the fund be accumulated, how that fund be used, that is the one important thing. And the second important thing is that identify the beneficiary. हम कब और किसको कैसे उस पैसे को यूज करेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है. सो रेगुलेटेड बाय द डिफाइंड प्रोसीजर, डिसीजन शुड बी टेकन बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म. तो इसमें जो भी हम जिस भी प्रोसीजर की बात करेंगे वो प्रोसीजर कहीं ना कहीं से ऐसा आएगा कि हमारा हर फैमिली मेंबर, एवरी एम्प्लॉई ऑफ दिस शिवराज हैज टू मस्ट बी सेटिस्फाई 100%. अगर उस फंड को हमें यूज करना है, उस फंड को हमें कलेक्ट करना है, उस फंड को हमें इन्वेस्ट करना है, उस फंड से हमें इनकम लेनी है, उस फंड से हमें किसी को मदद करनी है, तो कैसे होगा वो 100% ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होगा. और इस पे हम इस तरीके के फंड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं. तो अभी जो हम लोगों ने ग्रुप में सोचा, उस पर मैंने एक छोटा सा टेबल बनाने की कोशिश की. वो क्या टेबल बनाने की कोशिश की, लेट सपोज वी कंट्रीब्यूट 1% सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज. तो अभी हमारे पास में 301 एम्प्लॉई हैं जो इस ग्रुप में आ रहे हैं. As per group insurance plan, the employee more than 60 years cannot come in that group insurance. However, I'm not because the first condition of the group insurance is that he or she must be the employee of the institution. ये कंडीशन है. अगर उस कंडीशन में आते तो डेफिनेटली, बिकॉज वी डू हैव द रिटायरमेंट एज 65, सो प्रिंसिपली दे ऑल शुड कम. But when I inquired with the policies with my friends who are working in the insurance sector, then they tell it that, sir, after the 60 years, there is not the term plan in group insurance. So I do not include all those members who are aged more than 60 years. And as per our available records, ये मैंने चार्ट बनाने की कोशिश की है. उस कैलकुलेशन में मैंने क्या देखा कि there are 119 employee whose salary is 2.4 lakhs to 7.23 lakhs per annum. जो प्रेजेंट टाइम में जो अभी जो सैलरी विड्रॉन है पर मंथ, उसके हिसाब से अगर हम उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते हैं, एंड एज पर दी 350 रुपीज पर लैक्स एक इसका LIC का प्लान है. आई ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड.
but he was not able to provide me the documentary proof. So I just believe his statement, and I do have the calculation that if we contribute 350 rupees per lakhs, and that is the complete term insurance. So what is the term insurance? So in detail we'll discuss in next part. तो अगर हम 5 लाख रुपए देते हैं प्रीमियम उन सारे लोगों का जो 7.23 लाख रुपीज से कम इनकम में है, एंड प्लीज नोट हियर दैट आई हैड इंक्लूडेड ऑल दिस all employees who are also working on this, the outsourced employees are also who are getting the salary from Sivraj. So that's why there is the more number of 119 employees are there. So premium will be 1875 and total contribution from this group will be 2.37 lakhs and balance is 13,896. इसमें मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, जिन लोगों की इनकम लगभग 3-4 लाख से नीचे है उन लोगों की इनकम में जो 1875 रुपीज डिडक्शन नहीं है, इतना उनका डिडक्शन कम है, बट बिकॉज दे आर इन दी लोअर क्वार्टाइल सो वी में कंट्रीब्यूट बिकॉज ये हैंड्स ज्वाइन करने से है, तो उसमें मैंने ये नहीं देखने की कोशिश की कि उसके कंट्रीब्यूशन कितना आता है, बट वी थॉट दैट वी इन ग्रुप दैट वी थॉट दैट कि देयर शुड बी द मिनिमम 5 लाख रुपीज इंश्योरेंस, and then those employees whose income is 7.6 lakhs to 12 lakhs rupees, there are 39 employees and their summation let me cover is the 10 lakhs rupees. Similarly 8 employees are there whose income is 12.18 lakhs to 14.89 lakhs and उनका हम 15 lakhs तक का कवर देंगे. 9 employees ऐसे हैं जिनका 15.32 lakhs से 17.67 lakhs है, उनको 20 lakhs तक का कवर देंगे. There are the 30 employees whose income is 22.8 lakhs to 28.87 lakhs and unka sum assured are 30 lakhs, and there is the 31.50 lakhs to 37.52 lakhs and their sum assured may be 40,000 whose premium is 15,000 and their contribution 1.0 lakhs and next is the balance amount. तो इस टेबल पे और आगे हम बात करेंगे. So of how the group has come and why we need the insurance. So the basic characteristic of insurance is what? Pooling of the losses. किसी भी व्यक्ति को लॉस हो सकता है, लेकिन उस लॉस को जब ओवरऑल ग्रुप में डिस्पर्स करते हैं तो डेफिनेटली वो छोटा, वो कहते हैं ना कि जब किसी एक व्यक्ति को बहुत दर्द होता है लेकिन उसके साथ जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो दर्द कम हो जाता है. तो ठीक इसी तरीके से है कि अगर एक्सीडेंटल सिचुएशन एक एम्प्लॉइज के साथ आती है लेकिन कंट्रीब्यूशन तो सारे एम्प्लॉइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल गेट हेल्प फ्रॉम दैट फंड. And then the law of large number, that means the same kind of uncertainties get involved with the all members, where the large number of members are there. And then if any kind of unknown cause loss is there, then that loss may be minimized. And the risk transfer means what? Now whatever the financial liabilities are in future, and by taking the insurance we may transfer that financial liabilities to insurer. So what is the life insurance? Life insurance is financial cover or for a contingent linked with human life like death, disability, accident, retirement, etc. When human life is lost or person is disabled permanently or temporarily, there is loss of income to the households. डेफिनेटली जैसे ही व्यक्ति को हम खोते हैं तो उस घर की इनकम उस व्यक्ति के रेशियो में जीरो हो जाती है. And we can determine value of the human life. So monetary sum could be determined based on the loss of income in future years. जो हमने कहा कि फ्यूचर लायबिलिटी क्या होगी, हमारी फ्यूचर इनकम क्या होगी उस पर. सो हेंस द इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड और द अमाउंट गारंटीड टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ लॉस. सो in life, if we talk about the insurance, there are the 3 kind of insurance: life insurance, health insurance and non-life insurance. Life insurance, whole life insurance, that means it get only after the death where whole life is covered. Term insurance, we may define the term, how many years, how many months we want to cover our life, and then endowment plans is there, it will give the both. It gives us the insurance as well as it gives the return also. So but I do recommend that we should clearly divide 2 things separately. That is the saving. Insurance is not a tool of saving. Insurance is not a tool of investment. आई थिंक आप लोगों में जिन लोगों ने भी एक बीमा किरण करके पॉलिसी आई थी LIC में, आप लोगों को सबको ध्यान होगा, जो हमारे सीनियर कलीग्स हैं, 10,000 रुपए दे करके बहुत सारा किया गया था. दैट वाज द मार्केट बेस्ड प्लान. ऑन दैट टाइम द मार्केट वाज इंक्रीजिंग इन 14%, एंड इन दैट रिस्पेक्ट देयर आर द सो मेनी इंश्योरेंस एजेंट्स
who has predicted what be in future, और उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस कुछ समय खरीदा था, फिर मार्केट में बहुत सारा उसमें नुकसान भी हुआ। देन हेल्थ हमारे लिए अभी बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर कवर्ड इन दी सीजीएस प्लान्स। एंड देन नॉन लाइफ जो लाइबिलिटी लॉसेस, वर्क कंपनसेशन एंड प्रॉपर्टी लॉस, ये जिन लोगों ने भी हाउसिंग लोन लिया हुआ है उनको अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि अब हाउसिंग लोन कोई भी बिना प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के रिलीज नहीं होता है। तो सिर्फ इसीलिए ना कि अगर इन ड्यूरिंग द लोन रिपेमेंट पीरियड इफ पे हैज लॉस्ट द लाइफ, देन कौन उसको पे करेगा, और उस पर ही बड़ा एक लीगल पार्ट है। ऑल आवर प्रॉपर्टी विल गो टू आवर लीगल हेयर्स। अगर मैंने किसी मकान में लोन लिया हो तो भले ही वो बैंक के पास रखा हुआ, लेकिन वो जाने वाला है मेरे डिपेंडेंट या जो मेरी लीगली जो मेरी प्रॉपर्टी के लिए मीन ओनरशिप जिनके पास जाएगी उनके पास चली जाएगी। उस केस में बड़ा, और दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था जिसमें जिन्होंने लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास घर नहीं है और ये हमारा घर इसलिए हम नहीं लेंगे, एंड देन अगेन दिस हैपन। सो लाइकवाइज व्हाट, तो डिपेंडेंट में क्या है कि अगर उस केस में कहीं कोई दिक्कत आती है तो बैंक आजकल सिक्योर कर ले रहे हैं अपने हाउसिंग लोन या किसी भी लोन लेकर के आपको इंश्योरेंस कर रहे हैं। इवन देन इफ योर इनकम इज लेस एंड यू आर बाइंग द कार और सम business units, on that time they also take the life cover against that against the loan. So benefits क्या है? Indemnification of losses, less worry and fear, loss prevention, enhancement of credit and sources of investment of funds. So the concept, what is the concept of human life? Definitely किसी भी व्यक्ति के लिए human life क्या है, हर चीज के लिए अलग अलग बात होती है। मैं एक चीज कहूंगा कि कभी कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया हो, सपोज किसी के पास में वी हैव कोई पुरानी मोटरसाइकिल है या पुरानी कार है, तो वो कार या किसी भी व्यक्ति के लिए उतनी ही कीमत रखेगी जो उसकी कीमत है। अगर कोई कार हमने 5 लाख की ली हुई थी और एट दिस टाइम इट्स कॉस्ट इज ओनली 1 लाख, तो वो हर व्यक्ति के लिए, समाज में हर व्यक्ति के लिए उसकी कीमत 1 लाख ही होगी। लेकिन अगर वो मेरी कार है, लेकिन वो मेरे लिए 1 लाख कीमत नहीं रखेगी, ना मेरे लिए 1 लाख, वो 5 लाख रुपए कीमत रखेगी। मेरे लिए वो कीमत रखेगी when what be that car which I will use if I am not using this car। तो अगर मैं जो पुरानी कार में 1 लाख की अभी यूज कर रहा हूँ और मुझे कार खरीदने का मन मेरा 15 लाख की, या मुझे तो जीप कंपास खरीदने का मन है 25 लाख की, या मुझे हैरियर से चलने का मतलब है, तो मेरी कार उतना ही वैल्यू रखेगी जितना कि उस कार के हटाने के बाद में मुझे खर्च करना होगा। और उसी तरीके से ह्यूमन लाइफ की बात अलग है कि भाई प्रेम की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो ह्यूमन लाइफ possesses many values, most often irrepressible and not easily measured. These values are founded on religious, moral and social relationship. From a religious standpoint, for example, human life is regarded as a moral and endowed with a value beyond the compensation of moral man. In person's relationship with other human beings, a set of emotional and sentimental attachment is created that cannot be measured in monetary terms or supplemented by the material things. Life insurance is concerned with the human life or the economic value of the human life, which is derived from the earning capacity and financial dependence of the other on the earning capacity. So the economic value of the human life, preservation of family economic security, that is important, that family economic security and essentials of life insurance product, and the moral obligation to provide the protection. Life insurance can be used, all these are also where secure a line of credit, fund by sale agreement, guarantee future instability, equalize and inheritance, pay state tax. आपको एक चीज, what I do recommend always in the financial planning, that your balance sheet must be 0. जो एक चार्वाक का है ना, गृणं कृत्वा घृतं पिबेत, तो जो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप ऋण लेकर के घी पीजिए अगर आपके पास में ऋण चुकाने की क्षमता है। तो 2 तरीके के लोग होते हैं, मैं इस बात को बार बार बोलता हूं, जो एक कहावत है ना कि आप उतना ही पैर फैलाइए जितना चादर हो। तो हम सब लोग जानते हैं कि अब सिंगल बेड नहीं होता है, डबल बेड होता है। अगर हम डबल बेड की चादर ओढ़ करके जाना चाहेंगे तो आप जिंदगी भर सेविंग करते चले जाइए, बट यू नेवर
acquire the assets, you never, you may, sorry, I should not use the never, but there be the situation that we may not enjoy that much enjoyment which you are entitled for in your income. अगर हम बहुत सेविंग की तरफ जाएंगे तो जो हमारा एंजॉय कर लाइफ को एंजॉय करने का जो इंटाइटलमेंट है कहीं ना कहीं हम उसको खोते हैं. तो अगर हमारे पास पे करने की क्षमता है तो हमें लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ऋण हम तभी लेंगे अगर हम ऋण चुका सकते हैं, तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है. सो गिव टू चैरिटी, सप्लीमेंट, कॉलेज रिटायरमेंट, अदर एक्सपेंसेस, पे फ्यूनरल, राष्ट्र एक्सपेंस, पे इस पे बहुत सारी वैल्यूज ऐसी भी है क्योंकि हम जब ये रेफरेंसेज लेने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं से इंटरनेशनली लेने की जो तो बहुत सारी चीज़ें जो अपने यहाँ नहीं है वो बाहर है तो उस पार में आ जाते हैं. एंड प्रोटेक्ट ए बिजनेस फॉर्म एंड फाइनेंशियल लॉस. सो नाउ व्हाट इज दी आवर मेन पार्ट कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो प्लानिंग हमारी क्या होगी, इंडिविजुअल होगी, व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं, हम फैमिली के साथ करना चाहते हैं, या हम इंस्टीट्यूशन के साथ करना चाहते हैं. तो अगर हम व्यक्तिगत करना चाहता है, एज प्रोफेसर एसपी मैन टोल्ड अर्लियर कि हमारे सब लोगों की हमारी अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं से हम लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा होगा, लेकिन उस इंश्योरेंस में लेकर के भी अगर आप देखिएगा किसी भी व्यक्ति की जो मैक्सिमम इंश्योरेबल लिमिट होती है दैट इज दी 10 years of your salary. But how that 10 years or your salary is calculated, whatever the today's salary is there, that has to multiplied by 120. But if someone has taken 2 years back, right now the salary is more, that means your insurable limit भी increase. तो अगर किसी ने भी इंश्योरेंस लिया भी है तो भी आपके कहीं ना कहीं से वो बैलेंस होगा जिसको आप ले सकते हैं. दूसरा क्या है कि फैमिली के साथ में डेफिनेटली फैमिली प्लानिंग डिफरेंट होती है और बेसिकली एशिया महाद्वीप में जहाँ पर परिवार का महत्व है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, देयर इज दी बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मोरल, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी. जब हम परिवार में बात करते हैं तो हमारे यहाँ कहीं कोई मनी एक्सचेंज नहीं होता है, जिम्मेदारी का एक्सचेंज होता है. अगर कोई घर में हमारा फंक्शन होता है तो एक भाई कहता है मैं ये करूँगा, दूसरा कहता है मैं ये करूँगा, तीसरा कहता है मैं वो करूँगा, और चौथा जो नहीं बोल करता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो उसको फादर या मदर बुलाए कहते हैं कि भाई तुम्हें ये करना है. तो दैट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. there is no way of money transaction, there is no way of money transfer. But when we come out the institutional form, so there is the joint responsibility. For that way we may come out with a joint welfare fund, and that be good if it has covered two way, that कि जो ग्रुप की जरूरतें हैं, ग्रुप की जरूरतों को लेकर के, ग्रुप की जरूरतों में भाई सारे लोगों की, अगर मान लिया हम बात करते हैं कि हेल्थ की बात करते हैं, या साल में कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें सारे लोग एंजॉय करना चाहते हैं. अब उस एंजॉयमेंट में क्या है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेट वी हैव एनीवेयर इन दिस वे एंड वी गो इन ए रीजनेबल गुड होटल, so they may ask the money of ₹800 per plate. So if there is a group of 301 members, and let's suppose somewhere the expenses has come ₹1,500, so 1,500 rupees, all group members may not be comfort to pay this much amount equally. कुछ लोग बहुत खुशी खुशी दे सकते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कोई कुछ पेंडिंग एक्सपेंसेस जो तो कहेगी भाई इस खर्चे को इस महीने के बजाय अगले महीने कर लेते हैं. बट इफ वी हैव एनी कॉमन पूल, if we have any common group, so we may make all such kind of expenses from that pool. And second thing is what, क्योंकि जो human life या human income या employees की income से related है, and definitely that cannot be recovered, that cannot be managed with the common pool or contributed fund, that we recommended is 1% contribution. So there is the best idea that we can buy a group insurance. And what is group insurance? Group insurance policy gives us advantage of standardized coverage and very competitive premium rates. इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि प्रीमियम हमें बहुत अच्छा मिलता है. जैसे जैसे ग्रुप होता चला जाएगा वैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारा प्रीमियम छोटा होता चला जाएगा. You can avail of the group insurance policy that group you belongs to take. That means we, being a member, being an employee of the Seuras, we may become the part of that group. Members are entitled to get certificate of insurance if you participate in non-employer-employee group policy for your records. So this certificate should contains the schedule of benefits. That means it will give the what are the benefits.
जब हम कोई भी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे तो उसमें 3 चीजें निश्चित होंगी कि इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कितना प्रीमियम हमसे चार्ज किया जाएगा, एंड टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द कवर, एंड योर कवर कुड सीज इफ लीव द ग्रुप। यहाँ पर एक ही कंडीशन है, जैसे ही आप उस ग्रुप को छोड़ते हैं तो उस ग्रुप से आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं। बट देयर आर द सर्टेन इंश्योरेंस कंपनीज हु गिव्स दिस this benefits also, as and when you will be leaving the group, you may take that policy and individual. So when you leave the group of the insurer should offer you continued coverage under any individual policy. Let me take my own example. When I was working in Allahabad, they gave us one pension plan which was having the premium 12,500 rupees, where I need to pay as an employee, I need to pay 7,000 rupees, 7,500 rupees, and 5,000 rupees was contributed by the employer. And as and when I left the institution, after that, I am continuing that policy and I am paying the complete premium. So this was the basically group plans. So when you leave the group, insurer should offer you continued coverage under that individual policy. So the manager of the group should disclose the premium rate and terms of the policy, including the premium discounts offered to the group, and should pass the discount to all members. That means what? If the Sivraj family has any group insurance policy, so definitely there be one officer responsible who be coordinating with the insurance company. So he or she be liable to tell to the insurer that this particular employee had discontinued the institutions. और इसके बाद में अगर वो एम्प्लॉय कंटिन्यू करना चाहता है, बट दैट इज द टर्म्स एंड कंडीशन अमंग द इंश्योरर एंड इंडिविजुअल. द मैनेजर ऑफ द ग्रुप हैज डिस्क्लोज्ड एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर चार्जेस ही इज कलेक्टिंग फ्रॉम मेंबर्स ओवर एंड अबव प्रीमियम चार्ज बाय द इंश्योरर कंपनी. लाइकवाइज व्हाट, अभी जो मैंने अपनी पॉलिसी का एग्जांपल लिया, तो जैसे ही ग्रुप मैंने छोड़ा तो मुझे जो हमारे वहाँ कॉमन पूल फंड से जो पैसा निकल करके आता था, वो कॉमन पूल फंड से नहीं. वहाँ पर भी बहुत सारे फंड्स थे. देयर वाज द टीचर्स वेलफेयर फंड. Likewise, if anyone was paid the honorarium, तो उसका 10% पैसा काट लेते थे. अगर 300 रुपये ऑनरेडियम आ रहा है तो 30 रुपये उसमें टीचर्स वेलफेयर फंड में चला जा रहा है. सो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैज डिफरेंट मैकेनिज्म. लाइक अगर हम शिवराज में ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, जो पिछला हमने बात किया, हमारे पास 301 एम्प्लॉइज हैं. ये डिफरेंट नंबर ऑफ चार्ट्स हैं. और अगर हम 1% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो you be surprised that in the present condition there are 301 employees and the total coverage will be 3,775 lakhs rupees. 3,775 लाख रुपीज का इंश्योरेंस है हमारे पूरे ग्रुप का. हम कितना भी कॉमन पूल बना लें, इतना बड़ा फंड हमारे पास नहीं हो सकता है, और ये हो सकता है केवल इंश्योरेंस के कारण से. और हम कितना प्रीमियम दे रहे हैं इसके लिए एनुअली? वी आर पेइंग ओनली 14,15,625 रुपीज. और जब हम 1% कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है 16,57,794 रुपीज. and there is the balance of 2,42,169 rupees. And I am very happy that among the group, as we have decided the 5 lakh rupees for all those employees who are in the lower quartile or who are working on contract, whose salary is not more than 4 lakhs rupees, उनके प्रीमियम में कंट्रीब्यूशन हमारा जो जा रहा है वो कॉमन पूल से जा रहा है थोड़ा सा. There are 4 to 5 employees whose common pool giving the around 500 rupees, but there are so many employees who are 50 to 100 rupees common pool से. तो अब ये तो ये है कि कॉमन जब ज्वाइन करना है हमें तो वो करना पड़ेगा उस तरीके से. एंड दिस वन इज देयर. यहाँ पर हम बहुत सारे मैकेनिज्म को डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा ये ज़्यादा बैलेंस फंड है उसको हम कैसे एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करेंगे. और अगर उसको करने के लिए जो मुझे सबसे अच्छा माध्यम लगता है, आप लोग जो लोग भी ग्रुप हाउसिंग या सोसाइटीज में रहते होंगे, there is the IFMS, interest free maintenance security. Can we consider this 1% deduction as an interest free maintenance fund, where if income be there, that be the part of the fund and the principal may be with the employee. और जो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट होगा उससे आप प्रीमियम दे देंगे और उससे ही जो पैसा बचत हो रहा है वो ले लेंगे. उसी से हम हेल्थ की बात कर लें या हमारे बीच में कोई चीज आती है तो डेफिनेटली व्हाट बी दी मैकेनिज्म हाउ दैट फंड बी बीच लेटर स्टेज पे डिसाइड कर सकते हैं. वो पर्सनली मैं अपने ग्रुप में भी बोलता था और अभी भी मैं बार बार बोलता हूँ कि जो मेरे दिमाग में केवल 3 चीजें आती हैं अभी इस फंड को लेकर के. एक, हम ग्रुप इंश्योरेंस ले लें.
दूसरा हम ये लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी एम्प्लॉय किसी कारणवश अगर डेथ होती है उसकी, तो उसकी फैमिली के लिए हेल्थ को हम कॉमन पूल से दे दें, और जो उस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो वापस कर दे, या एम्प्लॉय का पूरा कंट्रीब्यूशन वापस कर दें, और at the time of retirement whatever the principal be contributed by the employee that be returned back. Benefits of the group insurance, जो तीनों चीजें हैं, एप्लीकेशन, लायबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एप्लीकेशन कॉमन एप्लीकेशन, हमें किसी इंडिविजुअल को एप्लीकेशन नहीं भरना है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड एम्प्लॉयर, ये आपको बता दें, इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द each and every terms and condition is defined that under what condition insurer will pay the claim and under what condition you will get the benefit. So if individually we dealt it, there may be the problems. And then benefit of service, benefits of service mean what? अगर कुछ भी होता है, अभी महेंद्र सर ने एक बात कही थी कि सब लोग मिलकर के एक फाइल बना लें, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस में ऐसी कोई फैमिली बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एज ए ग्रुप फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नो मेडिकल एंड एज एंट्री। if we have any medical problem, then definitely there be the premium, high premium. और एक चीज और बता दें आपको, जो हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से इसमें काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। राइट नाउ द मेजर वेरिएबल विच इज डिफाइनिंग द ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज द नंबर ऑफ डेथ इन लास्ट 3 years एंड नंबर ऑफ कोविड इन्फेक्शंस। तो ये हमारे लिए राइट टाइम है कि हम जितनी जल्दी इस ग्रुप में आ जाते हैं, जितनी जल्दी हम प्रीमियम डिसाइड करने की बात करते हैं, तो हो सकता है हमें उतना ही सस्ता प्रीमियम मिल जाए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एंड देन लायबिलिटी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर एंड लायबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर। अगर इंश्योरर और इंश्योरेंस के बीच में कोई भी बात आती है तो वो एम्प्लॉयर पे आएगा, या जो भी मैनेजर होगा असाइन फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या? 1 पॉलिसी फॉर ए ग्रुप, क्लेम सेटलमेंट cared by the institution, then insurance company goodwill, early claim settlements। आप सिंपली बात है, देखिए, if one individual say that this insurance company is not good and feedback is very bad, उन्होंने हमें नहीं कुछ दिया है, तो कितने लोग सुनेंगे? But as and when a group and with the backing of our institution, if we few people representative of our employee will be saying something, और जिसके बैक में शिवराज का बैनर होगा, शिवराज हमारा एम्प्लॉयर होगा, उसकी बात की फीडबैक की कितना इंपॉर्टेंट होगा, हर कंपनी अपनी गुडविल से डरेगी। तो अगर हम कोई भी ग्रुप इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वही होगा। तो ये अगर हम ग्रुप में आकर के आप बात करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और मैं 2 लाइनें कहना बार बार पसंद करता हूँ, यहाँ भी कहना चाहूँगा कि एक लाइन है बड़ी अच्छी कि ऐ सूरज तेरी औकात क्या है इस दुनिया में, हर सुबह के बाद एक रात भी है इस दुनिया में। तो ये एक जो भी निगेटिव हो सकता है, करंट पैंडेमिक के लिए हमने अपने बहुत कलीग्स को खोया है, लेकिन उसी बात में मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जहाँ तक खुला आसमां बाकी है, वहाँ तक मेरा मका बाकी है। तो हम एज ए ग्रुप आकर के जहाँ पर हम चल सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे, और हमें चलना चाहिए एज ए ग्रुप आकर के, और डेफिनेटली विल सेव आवर फ्यूचर आफ्टर आवर सेल्फ। जो आज का हमारा पर्पज है वो सिर्फ यही है कि मेरे बाद मेरा भविष्य, मेरा परिवार, वो सब जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, वो सब जिन्हें मैं चाहता हूँ, वो सब जिनको मैं कुछ देना चाहता हूँ, वो कैसे सुरक्षित रहें, एक उसके लिए एक हमारा प्रयास है। धन्यवाद, मेरी तरफ से धन्यवाद। Yes. Yadav sir, over to you, please. No, now the Parihar sir is there, na? One more person, Yeah. those who Yes, will sir. summarize and will offer his administrative wisdom. Actually, I thought that you are about to say something, so I just wanted No, to interrupt. I was about to invite Parihar. Over to Parihar sir, please. Thank you, sir. हेलो हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर्वप्रथम आदरणीय शीतल प्रसाद महिंद्रा जी और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी ने बहुत ही ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक और बहुत ही बारीकी से चीजों को कवर करते हुए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी
के बारे में बताया है। बहुत ही खुशी का विषय है कि चलिए विश्वविद्यालय इस समय ऐसे विकट समय के दौरान इस तरह की एक्टिविटीज का आयोजन करके लोगों को जोड़े हुए हैं, और हम लोग केवल अपने बारे में नहीं, सभी लोगों के बारे में अलग अलग विषय के ऊपर बात करते हुए कुछ न कुछ अच्छा निकाल के लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरा इसमें यही सब लोगों को बताना और निवेदन है कि हम लोगों ने जिस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की है, भारत सरकार समय समय पर सरकारी कर्मचारियों के बेनिफिट, उनके परिवार के बेनिफिट, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सी बातें बताती है और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस और ऐसी चीजें लेके आती है जिससे कि समय समय पर उनके लिए कुछ वेलफेयर की एक्टिविटीज की जा सके, उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जा सके, उनकी पारिवारिक सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो जो भी नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई है, उनके अंदर अभी तक ऐसे कोई प्रोविजंस नजर नहीं आ रहे जहां ग्रुप इंश्योरेंस और इन सब के बारे में कुछ इंप्लीमेंट हुआ हो। मैंने भी काफी नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रयास किए जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने पाया कि सभी जगह पर अभी सिर्फ वार्तालाप चल रहे हैं, चीजें प्रोसेस में हैं, लेकिन कहीं पर भी फाइनल नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके के प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो जल्दी से जल्दी इसी वर्ष के अंदर कुछ अच्छी स्कीम्स और कुछ अच्छे ऐसे प्लान लेकर के आ सकते हैं जिसको हमारे सभी विश्वविद्यालय के साथी लोग फुली एग्री करके और अपनी सहमति के साथ में उसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे और हम लोग सबकी पारिवारिक सुरक्षा और उसके लिए काम कर पाएंगे। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वेलफेयर फंड की जो हम बात कर रहे थे, ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो हम कुछ इस तरीके का वेलफेयर फंड एस्टेब्लिश कर सकते हैं सिस्टम में, जिससे कि हम लोग कुछ बूंद बूंद कंट्रीब्यूशन करके एक अच्छा फंड अपने पास बना लें और किसी भी विपरीत परिस्थितियों में, चाहे हमें आवश्यकता हो, चाहे हमारे किसी भी साथी के परिवार को आवश्यकता हो, हम उसको जो भी मदद पहुंचा सकते हैं वो सर्टेन प्रिंसिपल सेट करके उसके तहत हम लोग उनको वो मदद पहुंचा सकते। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। दूसरा, जैसा शीतल प्रसाद महिंद्रा साहब ने कहा कि आग लगने के बाद में कुआं खोदना, लेकिन मेरा ये मानना है कोई बात नहीं, ये हमारे जीवन के अनुभव है कि हम आग लगने के बाद कुआं खोदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं देर आए दुरुस्त आए। हम जितना जल्दी इस कार्य को स्टार्ट कर देंगे, ये मान के चलिए कि देर हमसे हुई है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग वो क्या बोलते हैं उस देर को भरपाई करने की कोशिश करें। जो चीजें हम जीवन में नहीं कर सकते उसके बारे में हम बात करना कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन ऐसी चीजें जो भविष्य में लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है या भविष्य में लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता निकाल सकती है, उसके बारे में हमें जरूर जल्दी से जल्दी प्रयास से स्टार्ट करने चाहिए बिना किसी देरी के। दूसरा, जो हम ग्रुप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर देखिए मेरा मानना ये है कि हम ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर जो एंडाउमेंट प्लान इन सब की बात करते हैं, एंडाउमेंट प्लान और ये प्लान जो है वो सब कहीं ना कहीं किसी इन्वेस्टमेंट और किसी तरह के बेनिफिट और उससे जुड़े होते हैं। तो वो हर इंसान का, हर व्यक्ति का अपना अपना पर्सनल वो होता है। तो इन्वेस्टमेंट वो कहाँ करना चाहता है, कितना करना चाहता है, उसको क्या रिटर्न चाहिए, ये सब उसका पर्सनल है। सिर्फ ग्रुप इंश्योरेंस का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है किसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर लोगों के परिवार को एक पारिवारिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो हमें सिर्फ उस विषय पे काम करना चाहिए कि हम सभी लोग मिलकर के ग्रुप इंश्योरेंस के ऐसे प्लान लेके आए जिसके अंदर कम से कम प्रीमियम देकर के ज्यादा से ज्यादा सबकी सुरक्षा को मुहैया किया जा सके। जैसे अभी मैंने भी काफी ग्रुप इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर प्रयास किया, तो मुझे कुछ जगह से ऐसा पता चला कि जहाँ पे 500 रुपए महीना से लेके 2000 रुपए महीना तक आपके अलग अलग कर्मचारियों को देना है जिनका एज ग्रुप अलग अलग है। जैसे अब हम बात कर सकते हैं कि जो लोग अभी 25 साल से 35 साल के एज ग्रुप में आते हैं, 25 से 35 के एज ग्रुप में आते हैं, उन लोगों को 500 रुपीज पर मंथ देना है। लेकिन जो लोग 55 से 60 के ग्रुप में आते हैं उन लोगों को 2000 रुपीज पर मंथ देना है। लेकिन उन लोगों का 50 लाख रुपए का रिस्क कवर वो कंपनी कर रही है, और 50 लाख रुपए का अगर रिस्क कवर आपका होता है जिसमें 24/7 एनी टाइप ऑफ डिजीज, एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, एनी टाइप ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, वो आपकी पूरी उसके अंदर कवर होती है। तो अगर इस तरीके के इंश्योरेंस अगर हमें मिलते हैं जहाँ 500 रुपए महीना से लेकर 2000 रुपए महीना के अंदर अगर हम सभी हमारे साथियों को एक इक्वल निश्चित राशि 50 लाख रुपए के लिए सुनिश्चित कर पाए, उसकी पारिवारिक सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सब लोगों का सहयोग। अब सहयोग के लिए हम यही कर सकते हैं कि हम लोग या तो जिस तरीके से अभी हमने वैक्सीनेशन कैंपस के अंदर एक वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चलाया था, काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा मतलब एक अपूर्णीय मतलब एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट हमारा रहा, एक बहुत ही सक्सेसफुल अचीवमेंट हमारा रहा सबके प्रयासों से। तो उसी तरीके से हम इसके अंदर भी कुछ इस तरीके का डेवलप करें कि हम कुछ गूगल फॉर्म या इस तरीके का एक फॉर्म डेवलप करके सभी लोगों से पहले जानकारी लें, लोग अपनी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हुए वो कितने लाख रुपए या कितने रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उनका जो मानना है वो क्या मानना है कि कितने रुपए तक का मंथली या एनुअल प्रीमियम वो देना चाहते हैं,
और वो क्या क्या चीज उसमें कवर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से सब लोगों के विचार जब हमारे पास आ जाते हैं तो उन विचारों को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए हम लोग उससे एक जिस्ट निकाल सकते हैं कि हमें किस तरीके की पॉलिसी लेनी चाहिए, किस प्रीमियम की बात करनी चाहिए और उसमें क्या क्या कवर करना चाहिए। इस तरीके की अगर व्यवस्था हमारे पास बन जाती है तो उसको हम एक मूर्त रूप देते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी ये प्रयास कर सकते हैं कि उसी चीज को लेकर के हम इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रोच करें और इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रोच करके जल्दी से जल्दी कोई प्लान अगर हमें मिलता है तो हम लें। मेरा ये भी कहना है कि इनिशियल इस स्तर पे हम लोग प्रयास ये करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सारे जो एम्प्लॉइज है वो मिलकर के अपने स्तर पे इसको पूरा एक ग्रुप इंश्योरेंस के लिए प्रयास करें, अपने स्तर पे इसको लें। भविष्य में जिस एक्ट के तहत हमारी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है, जिस एक्ट के तहत हम सब लोग आए हैं, जिस एक्ट के तहत हमारा विश्वविद्यालय आज संचालित होता है, उसी एक्ट में एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए। उसके अंदर सेक्शन 36 की जो मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 36 के अंदर एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए ऐसे इंश्योरेंस स्कीम और ऐसे इंश्योरेंस प्लान लेने की बात भी कही गई है, जिसके लिए आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स बना करके वो सब चीजें आप ला सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना है, हम सभी लोगों को मिलकर उसके लिए काम करना है। और जब भी वो सब चीजें एक रूप में आ जाती है तो हम ये भी ऐसा प्लान कर सकते हैं कि हम उन चीजों को हमारे इंस्टीट्यूट्स के साथ जोड़ करके ये जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम या जो प्लान लेने की हम बात कर रहे हैं उनको उसके साथ जोड़ लें। हो सकता है हमारी अथॉरिटी कुछ ऐसे प्रोविजंस भी ले आए जिसके तहत हमारे कुछ कंट्रीब्यूशन, मैं कोई फुली कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, कुछ पार्शियल कंट्रीब्यूशन या कुछ नॉमिनल कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी या एम्प्लॉयर भी हमारा उसमें देना चाहे तो इस तरह की व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। एक बार हमने शुरुआत कर दिया तो फिर चीज आगे बढ़ती चली जाएगी और रास्ते हमें मिलते चले जाएंगे। तो हमें देखना ये है कि हम जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत के लिए काम करें। बाकी मैं बहुत ज्यादा कुछ इसके ऊपर नहीं कहना चाहूंगा। हमें जरूरत अभी ये समय की डिमांड यही कहती है कि हम बातें कम करें और काम ज्यादा करें, क्योंकि बातें करते करते काफी समय गुजर चुका है और हम लोगों ने अपने कुछ साथियों को भी खो दिया है। तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आने वाले समय में हम लोग इस तरह की किसी भी चीज दुर्घटना का शिकार ना हो और सब लोगों की एक पारिवारिक सुरक्षा बन सके। ये ऑफिशियली जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था ग्रुप इंश्योरेंस के ऊपर, वो मैंने आपसे बात किया। दूसरा, अब मैं आप लोगों से अनऑफिशियली भी एक बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों से एक बात किया था। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि देखिए, हम जो इंश्योरेंस और सुरक्षा और पारिवारिक सुरक्षा की बात करते हैं, देखिए पारिवारिक सुरक्षा के अंदर हम लोगों का मानना है कि कल को हमें कुछ हो जाता है या एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मेरा यह मानना है कि देखिए, अभी हम जिस विश्वविद्यालय परिवार के अंदर काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय परिवार में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज को मैं देखता हूँ, चाहे वो ग्रुप ए के हो, चाहे ग्रुप बी के हो, चाहे ग्रुप सी के हो, मैंने देखा है कि हर परिवार के अंदर सभी लोग मोस्टली जो मैंने देखे हैं सभी एजुकेशन लिए हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मैंने क्या देखा है कि बांदर सिंदरी का जो लोकेशन है, इस लोकेशन को देखते हुए मैंने कई बार ये महसूस किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनके परिवार में साथी लोग या उनकी स्पाउस ये सब बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी है, मतलब प्रीवियस जब वो कहीं सर्विस करते थे उस समय उन्होंने कोई अपने अच्छे एक्सपीरियंस भी लिए है और उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन वो उस टैलेंट को यहाँ पे काम नहीं ले पा रहे। और हमारे साथ ये हो रहा है कि हम सब लोग कभी मिलकर के इन चीजों पे बात भी नहीं कर पाते हैं और इसके कारण से क्या हो रहा है कि हमारे जो फैमिली में जो साथ वाले हैं, देखिए मेरा ये मानना है कि जब तक हमारी स्पाउस या हमारे फैमिली में ऐसे मेंबर जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड है, जो कुछ कर सकते हैं और हमारे लिए एक सहारा बन सकते हैं या हमारे परिवार का लिए एक सुरक्षा की लिए एक कार्य कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए हमें मुझे लगता है कि कुछ हम लोगों को ऐसे प्रयास भी करने चाहिए जिससे कि हमारे परिवार में जो लोग है ऐसे है जो लोग कुछ कर सकते हैं, जिनके पास एक टैलेंट है, जिनके पास एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हम उन लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास करें कि यहाँ रहते हुए ही हम उन सब लोगों को वो व्यवस्था प्रोवाइड कर पाए, जिससे कि एक पारिवारिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और दूसरा उन लोगों को कुछ काम मिलने से या कोई किसी चीज में जुड़ने से उनको भविष्य के अंदर ये रहेगा कि हाँ ठीक है, मैंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली या जो मेरा अनुभव था या मेरा जो समय था उसका मैंने सही से यूटिलाइज किया। तो ऐसी कुछ चीजों के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए जिससे कि हम लोग ये सब चीजें कर पाए, क्योंकि देखिए अभी विपरीत परिस्थितियों का जो समय चल रहा है, इस समय हम देख रहे हैं कि हमें लगता है कि परिवार की सुरक्षा जितनी ज्यादा सुनिश्चित की जा सके, हम अपने टैलेंट, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस, अपने हुनर से जो चीजें कर सकते हैं, हम और हमारे परिवार के मेंबर उन सब चीजों को करने पर हम विचार करें, क्योंकि अब ये समय की डिमांड है तो हमें उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पेशेंस पूर्वक सुना और हमारे साथियों ने काफी बहुत ही अच्छा इस कार्यक्रम का आयोजन किया। स्पेशली डॉक्टर जन्मेजय पांडे साहब और प्रोफेसर जगदीश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर जितेंद्र कुमार और डॉक्टर शीतल प्रसाद महिंद्रा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मे सर।
Yes, Janmeji ji, definitely, officially, we will propose a vote of thanks to all our three resource persons, those who have taken lot of pains and made the things very simple to all of us to understand what is the group insurance, how you as a family need to move towards a common welfare. So, but that is going to be the last concluding part. I would request the three people to stay here for a while. And since we are having a time, we can spend some time, 10 to 15 minutes. If anyone colleague of us, if the certain things still remain unambiguous, we need to get some more clarity or something value addition, something to add some kind of the perspective. If any of our senior colleagues wish to add something or wish to offer their wisdom word or suggestion, I think this forum is welcome. So we will take a pause for a while and let us, have some kind of the deliberation from all our learned colleagues. तो आप मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि कुछ टिप्पणी, कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ जोड़ना, समथिंग सजेशन फ्रॉम एनी कॉर्नर. हमारे बीच में कोई छोटा बड़ा नहीं है. Is it okay, Janmeji ji, if you are moderating a discussion? Absolutely, sir. Absolutely. In fact, I was about to say that we are well in time to have some interaction before we conclude and have the formal vote of thanks. So, as Jadhav sir has rightly mentioned, the forum is now open for not only question answer, but any kind of opinion sharing or interaction. It is quite possible that we may have opinion from the participants that would enlighten the everybody. So let's have some suggestions, recommendations, opinion sharing, please. The session is open for interaction to all of you, please. Hello, can I say something? Absolutely, sir. Please go ahead. Actually, from the participants' attendance, I see that we were around 70 for this session, and Dr. Jitendra was counting 301. So that means we were not even 1/3 present for this session. So the first thing that I would suggest is that this information should be disseminated amongst all those colleagues who were not there for this session for some reasons. First thing. And the second thing that I would suggest is that we should immediately spring into action if we have to go in for this group insurance, as Dr. Parihar also suggested that we should just not keep talking, but we should also implement that and ensure that we do something meaningful in that regard. And as he was also sharing that there are many other central universities which have been exploring this option, but they have not been able to actually come on to a very concrete stand on this. So that is my suggestion, that we should try to bring in as many people as we can and as early as possible. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Yes. Dr. Gyan Ranjan supposed to leave for taking his class. So if Gyan Ranjan, you are having a 2 minute, if you wish to add something, your wisdom word. So this forum is for you. Sir, am I audible now? You are audible. Go ahead. Yes, sir. So I completely agree with Dr. Parihar ji that we should not waste our time too much, because we are already late. And I think we can circulate one Google form among the faculty member to get their consent whether they will be interested for a kind of a insurance scheme that the university can offer. But before that, I think if we are going to be very selective, because if we are giving a choice to the staff member whether they will join or not, then most of the staff member, they will prefer to opt out, because this is not a mandatory things. I think the university should go for a common, I mean, everybody should be part of it. I think that would be good. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Let us have two more perspective. I'm seeing that AR1 and then Ashish ji. I don't know who is the AR1, but I anticipate that it would be our Sham sir. And second AR would be Pradeep sir. Third AR would be our
Ashish ji. So these are all my three beloved colleagues, a very a very enthusiastic colleague. तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक 3-4 कमेंट. आशीष जी आप हैं यहाँ पर? श्याम जी, प्रदीप जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी नमस्कार सर, प्रदीप बोल रहा हूँ सर. प्रदीप जी कुछ बातें जोड़िए ना इसमें. हाँ सर, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा यदि ग्रुप इंश्योरेंस के लिए यदि हम कहीं आगे बढ़ते हैं तो स्टाफ के एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यदि इस पे हम सफल रहते हैं तो. जी 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 ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. आशीष जी. जी सर, थैंक यू. आपके बिना कोई भी अभियान सफल नहीं होता है, आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा इसमें. नहीं सर, मैं भी मतलब इसी सर के हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स जिन्होंने आज जो अपने व्यूज यहाँ सबमिट किए उन्हीं के साथ हूँ. हमारा ग्रुप इंश्योरेंस का कुछ ना कुछ होना चाहिए और मेरे ख्याल से ये इस तरह के अपने इस संस्था के लिए बहुत जरूरी है. जी जी. बट इसके लिए इनिशिएटिव लेके और मतलब कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने शिवराज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी. जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू. वी आर हैविंग श्रीवास्तव सर अमंग अस, तो आई एम रिक्वेस्टिंग श्रीवास्तव सर टू ऐड सर्टेन वैल्यूज इन दिस डिस्कशन. अगर आप हमें थोड़ा सी ज्ञान की 2 बूंदे अगर चखाएंगे तो समथिंग टू ऐड और योर गाइडेंस दैट हाउ वी शुड मूव अहेड. सर इफ यू आर देयर. Sir may be busy. Okay, and let us have 2-3 comments. Then we will move towards the conclusive part. Jadhav sir, I would like to propose that within the people participants right here, we have a number of younger faculty and female faculty as well. So if we can have some comments from or remarks, guidance, whatever, from some of our female colleagues, female friends. Yeah. To have an alternative opinion of what do they think about. I'm not trying to make a gender bias. Or to make a gender inclusive process. Okay, or not to become a gender blind. Yeah. Okay, we need to have certain comments. Maybe please request Bhavna madam is here. Bhavna ma'am, could you please comment on this? Okay, I am seeing Hemlata Manglani madam is here. I am seeing Anjali madam is here. Okay. Okay. So, shall I move towards the concluding part, Janmay ji, कि मुझे क्या लगता है? Yeah, if there are no more suggestions or comments, I would request respected Dr. Jadhav to please conclude the session and give a formal vote of thanks, please. Yeah, we are colleagues, sir. Okay, no one, all are respectable colleagues here, and absolutely. Yeah. My colleagues, they might have, they may be engaged in some other activities. Okay, I'm not, and there is an endorsement from every corner. Whenever you talk in an individual capacity, people are saying that things are happening very smoothly. We are already too late. Okay. University has established in 2009 and we are in 2021, so time has passed. Okay, and we need to be move very, very fast. See, recently we have lost our 3 colleagues, and if I go in a chronological order, so if I take our young colleague and if I understand his family liability, so unfortunately we have lost the young person, Hemanga Datta ji. I'm not saying that fortunately, I'm not using the word fortunately, but being an unmarried person and being a father pensioner and being a married girl, okay, there is no family liability. Let us imagine that, okay, if that Hemanga would have been married for 5 years and he would have left with the 2 children, okay, probably everyone's worry would have increased and probably there would be a greater distress in our environment, because every day we would have come across seeing the family of the Hemanga. Unfortunately, we have lost another colleague, those who was in middle age, and Professor Nagaraju, and he's been left with his 1 wife and 2 young
adolescent girls. One is studying in 10th and second one studying is 12th examination. So you can understand what the economic burden, what the different areas of the stress, and what the you can just imagine. And we have lost our senior professor, and left with a wife, those who are earning a moderate amount, and one daughter. So these three people were from the three different age group. These three people were representing, you know, the professor cadre and associate professor cadre and the assistant professor cadre. But once I analyze the stress, the agonies, the sorrows, and the areas of the complexities, I am seeing that the problems are common. तो मुझे लगता है ना कि आप प्रोफेसर हो या फिर आप मेरे यूनिवर्सिटी का एमटीएस स्टाफ हो, मुझे लगता है कि जब भी किसी परिवार में किसी व्यक्ति का चले जाना होता है, तो दैट लॉस इज ऑलवेज अनबियरेबल, दैट लॉस इज ऑलवेज अ प्रोफाउंड लॉस, और वो कभी किसी भी चीज से कॉम्पेंसेट नहीं हो पाता है. But the collectively, if we come together, then there are the chances that we can help each other. So since we have started our journey that we are here to self-help, we are here to basically help each other, or the mutual help. So probably I think we can move towards some better avenues. I'm not bothering about starting with the small numbers, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम जो होते हैं ना, वो हमेशा मतलब तादाद में नहीं किए जाते हैं. वो हमेशा शीतल प्रसाद महेंद्रा सर है, जितेंद्र कुमार सर है, हरि सिंह परिहार जैसे जो बुद्धिजीवी, जो समाज चिंतक, जो संवेदनशील लोग होते हैं, जिनको जन्मेजय पांडे जी, ज्ञान रंजन, या हमारे सरोज पांडा, या हम जैसे बहुत लोग जो है ना, ओके, दे ऑलवेज कम विद द वॉलंटरी. वेर इज ईश्वरन सर है, हमारे आशीष जी गुप्ता है. तो व्हेनेवर ओके यूनिवर्सिटी इज इन क्राइसिस, ओके, लोग हमेशा दौड़ के आते हैं, और वो हमेशा किसी भी अच्छे स्वस्थ समाज का लक्षण होता है. और मैं मानता हूं कि मेरा CURJ परिवार जो है वो स्वस्थ परिवार है, संवेदनशील परिवार है. तो भले ही आज की हमारी तादाद, आज का हमारा नंबर भले ही 70 क्यों ना हो, लेकिन वो नंबर आगे जाएगा, क्योंकि हर दिल में ना कुछ दर्द है, और हर दिल में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का अरमान है. तो आई एम क्वाइट होपफुल एंड ऑप्टिमिस्ट फॉर दैट. मुझे क्या लगता है, हाउ वी कैन मूव अहेड, एज परिहार सर एडवाइस अस बेसिकली टू do some sort of analysis that how many people are interested, their financial liability, their present investment, understanding their willingness. So as previously Gyan Ranjan Panda ji and Saroj Panda ji, okay, they design a one form with the seeking a guidance from Parihar ji or Jitendra ji. Certainly in the next week we can do that. I would like to request three of my same colleagues, Jitendra Kumar ji, Shital Prasad ji and Parihar ji. अगर आप हमें एक 2 पेज का अगर एक नोट बना के देते हो, तो आई विल प्लेस बिफोर द फ्यू रिप्रेजेंटेटिव डीन्स कमिटी मेंबर, फ्यू सीनियर पीपल एंड फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कलीग्स. बहुत बार क्या होता है ना कि आपने कितना भी अच्छा विवरण और प्रस्तुति हमारे सामने रखी हो, लेकिन उसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल हो, कुछ लीगल एंगल हो, और आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि हमारे सीनियर कलीग्स हमें मार्गदर्शन करेंगे. तो मैं चाहूंगा कि ये 2 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, प्रोफेसर प्रवीण कुमार साहू जी, प्रोफेसर SN अम्बेडकर जी, प्रोफेसर उमाशंकर मिश्रा जी, ये 3 सीनियर मतलब प्रोफेसर भी है, डीन कमेटी के मेंबर भी है. तो हम ये 3 लोगों के पास एज ए रिप्रेजेंटेटिव के, सर आपको क्या लगता है इस डॉक्यूमेंट के बारे में, क्या हमें मतलब इस चर्चा को, इस विषय को आगे हमको कैसे लेके जाना चाहिए, आप हमें मार्गदर्शन करें. उसी प्रकार से हमारे श्रीवास्तव सर है, प्रदीप जी है, आशीष जी है, श्याम सर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन साइड से जो कुछ लोग हैं ना, हमने ये डॉक्यूमेंट उनके पास भी देना चाहिए. एंड थर्ड वन इज, मेनी ऑफ टाइम पीपल आर फीलिंग कंफर्टेबल इन रिटर्न कम्युनिकेशन. इफ यू आर आस्किंग माय ओपिनियन, ओके, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन रिटर्न कम्युनिकेशन. जैसे कि अभी हमने हमारे कुछ कलीग्स को बोला कि व्हाट आर योर ओपिनियन ओवर इट, तो आई टेक इट दिस इज अ मैटर ऑफ comfort or this is a matter of convenience. So all my such colleagues, okay, from every corner, from every cadre, they may be a section officer, they may be MTS staff, okay, or they may be from any cadre. So such people can give their opinion. तो इस प्रोसेस को हम और थोड़ा सा कंसल्टेटिव और थोड़ा सा इंक्लूसिव बनाने का प्रयास हमारे साइड से हम लोग करेंगे. एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑफ माई 3 ऑफ माई कलीग और जन्मेजय जी एंड माई अदर कलीग. मुझे लगता है कि हमने परिणामों का चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट हमारे पास एक सेटिस्फैक्शन तो रहेगा
भले ये चीज को हम वी मे नॉट टेक इट एट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, लेकिन हमारे पास ये समाधान तो रहेगा कि भाई एक सही समय पे जब हमारे CURJ के वातावरण में बहुत सारी चिंता थी, लोग थोड़े से चिंतित थे और कुछ परेशानियां थी, तो हमने उस समय में इस पहल आप सब लोगों के सामने रखी थी। तो मुझे लगता है कि लोग भी हमारे साथ होते हैं, बस किसी ना किसी लोगों ने शुरुआत करने की जरूरत होती है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑफ माय 3 कलीग्स, ओके, कि दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव, दे हैव स्पेंड देयर फोर्टनाइट टाइम। आपने पिछले 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय अलग अलग जगह से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट प्राप्त किए, आप लोगों ने अध्ययन किया, you have collected a different case studies and other thing, and very meticulously you have presented before us, so I am thankful to you. In conclusion, मुझे लगता है कि there are only 4 words. One is to connect, second is to cooperate, third one is basically consume the benefits, and lastly to control it. तो मुझे नहीं लगता है, this is the spirit of the cooperative, this is the spirit of the all the group thinking. किसका कंट्रोल ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगा और ना कोई विशिष्ट व्यक्ति लोगों के पास होगा, इसका कंट्रोल जो होगा वो हमेशा ग्रुप में रहेगा। तो इस प्रोसेस की ब्यूटी जो है वो मुझे लगता है कि कॉमन कंजम्पशन, कॉमन कंट्रोल, ओके, एंड कनेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर केवल पैसों का व्यवहार करने के लिए यहाँ पर एकत्रित नहीं आएंगे, तो इस पूरे व्यवहार में मुझे लगता है कि धन का भी व्यवहार होगा। धन के व्यवहार के साथ साथ हमें लगता है कि हम लोग मन से भी जुड़ेंगे, हम लोग हमारे बीच में एक मन का भी व्यवहार होने लगेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, वार्तालाप होते जाएगी, तो हो सकता है कि जो सुनहरा सपना आज देखने का हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट कैडर के जो लोग हैं या जो लोग इस चीज को और आगे लेके जाने वाले हैं, वो शायद और बेहतरीन तरीके से उसको आगे लेके जाएंगे। तो लेट अस बी ऑप्टिमिस्ट and let us have a dream, and so I'm thankful to all of you that we have dreamed for a very beautiful thing which was a long due, जो बहुत समय से हमारे पास प्रलंबित थी। And finally, as my colleague Janmay ji instructs me to say thank to you, so I thank to all my 70 colleagues, those who have joined, those who have spared their time, और जो पागलपन ये 7-8 लोग जो कर रहे हैं, उस पागलपन को आप लोग झेल रहे हो या समझ रहे हो या हमको सांत्वना दे रहे हो या फिर हमको सपोर्ट कर रहे हो या फिर हम सब लोगों ने मिलकर आगे जाना चाहिए, आप जो हमारा हौसला बढ़ा रहे हो, इसलिए द पीपल दोज यू हैव जॉइंड हियर, फर्स्टली थैंक्स टू ऑल ऑफ देम एंड थैंक्स टू ऑल दिस रिसोर्स पर्सन, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अध्ययन किया है और हमें तो बस आज हम लाभान्वित हुए आज के 3 तारीख में, लेकिन मैं जानता हूं कि पिछले 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय आप लोग हमेशा इस विषय पर काम करते हो। Thank you, Janmay ji, and the people those who are helping us to arrange it on a digital platform. Because of your pains and because of your arrangement, virtually we all people got connected.